ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਤੋ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਆਨਸਰਸ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ। ठीक है, तो चलो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਉਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਫਸਟਲੀ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, what causes economic problem, फिर central problems of an economy, what to produce, how to produce, for whom to produce, then ਉਹਦੇ solutions ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ PPC ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ PPC ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ opportunity cost ਦਾ concept ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। तो ये टू डू लिस्ट है। तो अज असी ये सारा चैप्टर जो है फिनिश करांगे। तो स्टार्ट करते हैं आप वेरी फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक। तो लेट्स सी व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ਦਾ बेसिकली मीनिंग ਹੁੰਦਾ ਆ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ਸਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਇਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੋਇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਚੋਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਫਾਰਮਸ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਚੋਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸਟੱਡੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ wants of human beings are unlimited but the means of satisfying these wants are scarce। तो ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਰਸ ਨੇ। ਸਕਾਰਸ ਮੀਨਿੰਗ ਘੱਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। It is possible for an economy to produce everything for each individual because no economy possesses unlimited resources। तो ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। तो ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ it becomes necessary for every economy therefore to make a choice regarding the efficient use of the available resources of the economy like land, labor, capital, etc। तो ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਇਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो एक चॉइस जी बना लेंगे वो प्रोड्यूस करन दी। हुण असीं देखते हैं एग्जाम्पल दे विच तुहानूं अच्छे तरह समझ आ जाएगा।
For example, the economy has to decide how much of the resources are to be used for the development of industries and how much for the development of agriculture. तो हम थानू की समझ आया कि इकोनॉमी जो है उन्हें डिसाइड करना है कि असी रिसोर्सिस नू किस तरह यूटिलाइज करना है कि असी किन्नी डिवेलपमेंट इंडस्ट्री दी करिए और किन्नी डिवेलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर दी करिए. तो द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस टू डिफरेंट यूजेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो हुण की इकोनॉमिक प्रॉब्लम दा मेन की मीनिंग निकलदा है कि हुण इकोनॉमी दे विच ਅਸੀਂ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ. ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ. ਤਾਂ ਹੁਣ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक जो है अराइज हो गई है मीनस कि साढ़े को चॉइस की प्रॉब्लम जी बहुत वड्डी अराइज हो गई है. तो दस बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सिस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिनाइजिंग द रिसोर्सिस. तो किस तरह असी रिसोर्सिस नू फुली यूज़ करना है ताकि जो साड़ियाँ वांट्स ने मैक्सिमम अनलिमिटेड वांट्स ने वो सैटिस्फाई हो सकन. तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है साड़ी मेन दसी जाती है इकोनॉमिक्स दे विच इकोनॉमी. नाउ नैक्सट देखो हुण असी हुण करांगे बेटा व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਚੋ. ਫਰਸਟ ਹੈ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵਾਂਟਸ. ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ. ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਔਰ ਸਕਾਰਸ ਮੀਨਸ. ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਂਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ. ਸਕਾਰਸ ਮੀਨਸ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਜ਼ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ. ਐਂਡ ਥਰਡ ਹੈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ. तो हुण आल्टरनेटिव यूजेस भी इकनॉमिक प्रॉब्लम का कॉज है कि जदों साड़ियाँ वांट्स ने ये तीनों पॉइंट्स जो ने ना बेटा ये इंटर रिलेटेड ने. सब तो पहला साड़ी अनलिमिटेड वांट्स जिहड़ी आ वो अराइज ने कि साड़ियाँ जिहड़ियाँ डिमांड ने बहुत ज़्यादा ने पर उन्होंने फुलफिल करने दे लई साडे कोल रिसोर्सिस जो ने वो लिमिटेड ने. एंड दैन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੌਜ਼ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਕੌਜ਼ਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ प्रॉब्लम का मीनिंग लिखना होएगा विद एग्जाम्पल एंड आफ्टर दैट थानू कॉजेज लिखने होंगे. कॉजेज के लिए थानू देखो प्रेजेंटेशन भी थोड़ी मैटर करती है. तुसी लिख दो सब तो पहला तुसी लिखोगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम. मैं थानू नाल नाल थोड़ा जिहा हिंट भी दे दिन्नी हाँ. इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीनिंग लिखोगे तुसी इसका राइट. आफ्टरवर्ड्स तुसी एग्जाम्पल दोगे. ठीक है एग्जाम्पल देने तो बाद तुसी दसना है कि कॉजेज किहड़े किहड़े ने है ना. तो कॉजेज के लिए तुसी अच्छा जिहा फ्लो चार्ट बना सकते हो इदां. 3 कॉजेज ने एंड यू राइट नंबर 1 कॉज हेयर, सेकंड हेयर एंड थर्ड हेयर. क्लियर. आफ्टरवर्ड्स you have to explain all the 3 points individually. ठीक है उस तो बाद तुसी इन्हां नूं कल्ले कल्ले एक्सप्लेन कर देना आ. एंड दैन तुसी कंक्लूजन भी जरूर देना आ. कंक्लूजन इज मस्ट इन इकनॉमिक्स. तो इहदे नाल की हुंदा कि एक तो थोड़ा आंसर जो है अट्रैक्टिव लगता है और थोड़ा मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं. तो कंक्लूजन इज मस्ट एट द एंड ऑफ आंसर. सो ये सी थोड़ा
फर्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हुण असीं नैक्सट करांगे सैंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कि किहड़ियां सैंट्रल प्रॉब्लम्स ने इकोनॉमी दे विच, तो उसनूं हुण आपां स्टडी। सो देखो हुण सैंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हुण देखो वैदर इट इज़ अ रिच और अ पुअर और डिवेल्प्ड और अंडर डिवेल्प्ड कंट्री, रिच भी हो सकती है, पुअर भी हो सकती है, जिन्हों असी डिवेलप्ड भी कह देंगे हैं और अंडर डिवेलप्ड भी कह देंगे हैं। कंट्रीज हो सकती ने, बट ये नहीं है कि रिच कंट्री जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स नू फेस नहीं करती, वो भी फेस करते हैं और पुअर भी करते हैं। तो एवरी इकोनॉमी फेसिस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। और केड़ियां 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ने? नंबर 1 है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड लास्ट थर्ड है for whom to produce, for whom to produce। तो इन 3 प्रॉब्लम्स जिहड़ियां नेगियां हर एक इकोनॉमी जो है फेस करती है, वैदर इट इज़ अ रिच और अ पुअर। क्लीयर? तो हुण असीं इन्हां तिन्नों प्रॉब्लम्स नूं डिटेल दे विच स्टडी करदे हां। तो तुहाडी बुक दे विच डिटेल दे विच दित्ता होया, मैं स्क्रीन शेयर कर। नाउ लेट्स सी व्हाट टू प्रोड्यूस। This problem has 2 dimensions, what to produce and how much to produce। ਹੁਣ producers जो ने इस दे विच देखणगे कि असी की चीज़ प्रोड्यूस करनी है और किन्नी प्रोड्यूस करनी है, मीनस कि ਉਹਦੀ क्वांटिटी किन्नी होनी चाहिए है। The first and foremost problem of every economy is what goods and services should be produced so as to satisfy the maximum wants of the पीपल। कहते कि फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हर एक इकोनॉमी फेस कर दिया, वो यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने किहड़े गुड्स नू प्रोड्यूस करना है ताकि जो साडे कंज्यूमर्स ने वो सैटिस्फाई हो सकन और प्रोड्यूसर्स नू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। ठीक है? दिस प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट मीन्स आर स्कार्स इन रिलेशन टू देयर वांट्स। देखिया ਉਹੀ प्रॉब्लम आ गई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ रिसोर्सिस जो ने वो बहुत ज़्यादा घट ने पर साड़ियाँ वांट्स जड़ियाँ ने वो अनलिमिटेड ने। सो प्रोड्यूसर्स जो ने गे वो कन्फ्यूजन दे विच हो जाते हैं कि असी किहड़ी गुड नू प्रोड्यूस करना है, तो ताकि जो साडे कंज्यूमर्स ने साडे इकोनॉमी दे विच सैटिस्फाई हो सकन। क्लीयर? तो हुण असीं देखांगे ईच इकोनॉमी हैज़ देयरफॉर टू मेक अ चॉइस। हर एक इकोनॉमी नूं कोई ना कोई चॉइस जो है बनानी पैंदी है ताकि जो साडी सैटिस्फैक्शन है वो पूरे तरीके दे नाल फुलफिल हो सके। तो इहदे विच 2 फोल्ड डिसीजनस आंदे ने। फर्स्टली द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। For instance, which of the consumer goods like sugar, cloth, wheat, ghee, etc. are to be produced and which of the capital goods like machines, tractors, etc. are to be produced। Similarly, choice बनाते हैं between production of wartime goods like उन्होंने rifles बनाने हैं, guns, tanks and peace time goods like bread or butter। तो हर एक कॉमोडिटी दे लई यह चॉइस बनाते हैं प्रोड्यूसर्स के सानू किस तरीके दे नाल गुड्स जो है प्रोड्यूस करनियां चाहिए ने। अगर वॉर टाइम है, डिफेंस दे लई भी गुड्स जो है प्रोड्यूस करने पैंदे ने, तो आपां उन्हां नू किस तरीके दे नाल रेशो दे नाल असी सैमल्टेनियसली प्रोडक्शन जो है करते हैं तां जो कि साडा हर सैक्टर है इकोनॉमी दा वो गुड्स तो गुड्स दे नाल सैटिस्फाई हो जाए। इदां ना होवे कि असी सारा दा सारा पैसा है ना क्लोथ दे उपर ही खर्च कर दिता प्रोडक्शन दे विच, तां साडे डिफेंस दे लई कोई भी चीज़ां नहीं हैगियां या साडे पीस टाइम गुड्स दे लई कोई चीज़ां नहीं हैगियां।
तो ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। तो चॉइसिस जो ने वो इंपॉर्टेंट ने, अगर असी चॉइसिस नहीं बनाते तो सानू प्रॉब्लम आ जाती है, रेशो साडी जिहड़ी है डिवाइडेशन दी वो उपर नीचे हो जाती है। तो असी इक्वली डिवाइड करते हैं हर एक सैक्टर नूं। तो नैक्सट आ जाता है कि वैन एन इकोनमी हैज़ टू टेकन अ डिसीजन एज टू वट गुड्स और सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, दैन इट हैज़ टू डिसाइड अबाउट इट्स क्वांटिटी। ऑबवियस गल है ये, ठीक है, कि अगर कोई असी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनमी दे विच तो असी उसकी क्वांटिटी नूं भी देखना है। ये नहीं है कि असी डिफेंस के इक्विपमेंट्स इन्ने ज़्यादा बना दिए कि उन्होंने इन्नी ज़रूरत भी नहीं हैगी, ठीक है। असी क्लोथ की इन्नी ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिए कि उन्नी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हैगी। असी हर एक चीज़ नूं क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली मेजर करके फिर ही असी प्रोडक्शन जो है करते हैं। क्लीयर। सो हुण असी नैक्सट करांगे हाउ टू। सो हाउ टू प्रोड्यूस दे विच देखो ये सैकेंड मेन प्रॉब्लम है इकोनमी दी, जिस दे विच असी किस तरह प्रोडक्शन करनी है, ए वाले क्वेश्चन दे विच असी फस जाते हैं। तो द सैकेंड मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनमी इज़ हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स और हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। किस तरह असी प्रोडक्शन नूं प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, वो चीज़ नूं असी इहदे विच कंसिडर करते हैं। This problem is concerned with the choice of technique of production. So इस दे विच मेन पॉइंट की है टेक्नीक ऑफ प्रोडक्शन, कि असी केड़ी टेक्नीक नूं यूज़ करके असी अपनी प्रोडक्शन नूं जो अगे वधाना है। तो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज़ पॉसिबल आइदर बाय हैंडलूम्स और बाय मॉडर्न मशीन्स। तो असी अगर क्लॉथ की प्रोडक्शन करनी है तो असी टेक्निक्स हैंडलूम्स भी यूज़ कर सकते हैं, मीनस कि असी हैंड वर्क भी कर सकते हैं, और असी मॉडर्न टेक्निक्स भी इस दे विच यूज़ कर सकते हैं। तो इट इम्प्लाइज मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट। ब्रॉडली देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, वन इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड वन इज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक दोनों दे अपने अपने फ़ायदे भी ने और नुकसान भी ने, ठीक है। बोथ हैज़ देयर प्रोज एंड कॉन्स एज वेल। नाउ लेट अस सी फर्स्टली लेबर इंटेंसिव टेक्निक की। नाउ देखो लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है उस दे विच असीं लेबर नूं ज़्यादा यूज़ करते हैं। हुण इहदे विच मशीनरी की जो यूजेज आ वो घट हुंदी है, ठीक है। लेबर नूं असीं मीनस कि ह्यूमन कैपिटल नूं असीं यूज़ करते हैं इहदे विच ज़्यादा प्रोडक्शन दे लई। क्लीयर। तो ह्यूमन कैपिटल यूज़ करते हैं, इहदे नाल सानूं की फ़ायदा होएगा कि साडी जो इंप्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो घट जाएगी और इंप्लॉयमेंट रेट जो है साडा इंक्रीज़ हो जाएगा इकोनमी दे विच। क्लीयर। पर इसका कुछ नुकसान भी है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर असी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये नाल की हुंदा है कि साडी प्रोडक्शन दे लिए टाइम जो है ज़्यादा लगता है, और न्यू टेक्निक्स दे नाल जो प्रोडक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अगर असी प्रोडक्शन दे लिए टाइम जो है सेव करना है और प्रोडक्शन नए टेक्निक्स दे नाल यूज़ करनी है, मॉडर्न टेक्निक्स दे नाल, तो दैन वी यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिस दे विच असीं मशीन्स नूं ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोडक्शन दे लई। इहदे नाल की हुंदा कि साडा जो टाइम है वो सेव हो जाता है एंड साडी प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो जाती है। तो ये दो चीज़ां ने जो असीं कंसिडर करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस दे विच। तो ये प्रोडक्शन हाउस दे विच मीनस के प्रोड्यूसर्स का यह डिसीजन हुंदा है कि असीं लेबर इंटेंसिव टेक्निक नूं यूज़ करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नूं यूज़ करना है। और एक थर्ड ऑप्शन भी होंदी है कि अगर असी दोनों नूं मिक्स करके चलीए तो भी साडी प्रोडक्शन जो है वो हो जाती है, क्योंकि लेबर जो है उसनों भी कम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंप्लॉयमेंट रेट जो है सानू हाई रखना पैंदा है, और असी न्यू टेक्निक्स नूं भी यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि असी टाइम नूं सेव भी करना चाहते हैं। तो दोनों का मिक्सचर भी जो है प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो नैक्सट हम असी करांगे फॉर नाउ अपनी बुक दे विच देखो फॉर होम टू प्रोड्यूस।
Owing to limited resources, an economy cannot produce goods for all section of society to the extent desired. तो ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. Broadly, every economy has two sections of the society. One is rich one and second one is poor one. Social justice is promoted if more goods are produced for the poor. तो कहते अगर सोशल जस्टिस देखना, सोशल जस्टिस का मीनिंग है तो सोशल वैलफेयर. कहते कि अगर इकोनमी दे विच असी सोशल वैलफेयर नूं देखते हाँ तो असी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा पुअर लोगों के लिए करांगे. इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी और प्रमोट इक्वालिटी. तो ये रिड्यूस करेगी इनइक्वालिटी नूं और प्रमोट करेगी साडी इक्वालिटी नूं. बट देयर इज़ अ हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट. तो ये सानू एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट जो है खर्चा एक्सपेंस है वो करना पएगा. तो बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स वुड रिमेन लो. तो अगर वो खाली सिर्फ पुअर लोगों के लिए ही प्रोडक्शन करेंगे तो जो प्रोड्यूसर्स ने उन्होंने प्रॉफिट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होएगा. तो लो प्रॉफिट्स का मतलब होएगा लो इन्वेस्टमेंट. एंड जो लो इन्वेस्टमेंट होएगी तो साड़ी जो GDP ग्रोथ है मीनस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेट है जो साडा वो डिक्लाइन हो जाएगा. ठीक है, तो जिदे नाल की होएगा कि साडी इकोनमी जो है वो बैकवर्ड ही रह जाएगी. तो जो सानू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दे विच जो है सोशल इक्वालिटी और GDP ग्रोथ है ओदी प्रॉब्लम जो है सानू अराइज हो जाएगी और फेस करनी पेगी. तो फॉर होम टू प्रोड्यूस दे विच असी ये देखना है कि सानू किस तरीके दे नाल प्रोड्यूस करना चाहिए है तां जो कि प्रोड्यूसर्स नू भी प्रॉफिट हो सके एंड इक्वालिटी भी हो सके, इकोनॉमी दे विच कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होए. क्लीयर. तो ये तीन जो सीगे साडे सेंट्रल प्रॉब्लम सीगियां इकोनॉमी दियां. तो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ भी बेटा क्वेश्चन बनता फुल फ्लैज कि व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. और क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता होंगे कि व्हाट इज़ अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड राइट डाउन दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. तो ਇਹਦਾ भी प्रोसीजर इदा ही आंसर अटैम्प्ट करने का जिस तरह मैं थानू पहले वाले क्वेश्चन. नाउ लेट अस सी व्हाट आर दी सॉल्यूशंस फॉर सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज़. तो डिफरेंट इकोनॉमीज़ जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम्स अराइज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ जो असी पहला स्टडी कीतियां ने कि प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ने इकोनॉमी दे विच. तो हुण उन्हां नूं सॉल्व करन दे लई साडे कोल सॉल्यूशंस भी गिवन ने. क्लीयर. तो डिफरेंट इकोनॉमीज़ जो ने उन्होंने प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व करन दे लई डिफरेंट मैथड्स नूं यूज़ करते हैं. क्लीयर. तो इकोनॉमी 3 टाइप्स दियां हुंदियां ने. वन इज़ मार्केट इकोनॉमी, सैकेंड वन इज़ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड थर्ड इज़ मिक्सड इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी जो कि फ्री इकोनॉमी हुंदी है. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हुंदी है सोशलिस्टिक इकोनॉमी. एंड मिक्सड इकोनॉमी जो हुंदी है इस दे विच बोथ आ जांदा है पब्लिक एंड प्राइवेट सैक्टर्स. तो ये तीन जो है इकोनॉमीज़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. तो डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ. तो मैं स्क्रीन नाउ लेट अस सी मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी इज़ अ फ्री इकोनॉमी. फ्री इकोनॉमी मीनस ਹੁੰਦਾ कि जिथे किसी गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होंगी. फ्री इकोनॉमी ਨੂੰ ਅਸੀਂ लिबरलाइज्ड इकोनॉमी भी कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. It means that producers are free to decide what, how and for whom to produce. तो प्रोड्यूसर्स के उपर इन्नी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंदियां कि तुहानू यही गुड प्रोड्यूस करनी है, इस तरीके दे नाल प्रोड्यूस करनी है और किस सैक्टर के लिए प्रोड्यूस करनी है. ਇਹਦੇ उपर कोई भी इन्नी खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंदियां. इकोनॉमी बिल्कुल फ्री होंदी है इंटरफेरेंस तो. On what basis do they take their decision? Yes, it is on the basis of supply and demand forces in the market. तो अगर हुन फ्री
ਇਕੋਨਮੀ ਜੋ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ। तो producers will choose to produce those goods the prices of which are relatively high। जिन्हां दी prices, जिस प्रोडक्ट दी प्राइस ज़्यादा होएगी उसनों प्रोड्यूस करनगे so that उन्हां दा प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज हो सके, because they are interested in maximizing their profit। ऑब्वियसली गल है कि जो प्रोड्यूसर्स ने ਉਹੀ गुड ਨੂੰ प्रोड्यूस करनगे जिस दा प्राइस जो है मार्केट दे विच ਉਹ ज़्यादा है, जिस दे करके उन्होंने मनी भी उन्नी ज़्यादा मिलेगी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो उन्होंने प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सकेगा। दे विल अडॉप्ट दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और प्रेफर टू यूज़ दोज इनपुट्स द प्राइजेज ऑफ विच आर रिलेटिवली लो। तो इनपुट वो केड़ी यूज़ करनगे जिन्हां दा प्राइस जो है वो घट होएगा। मैं थोनू लास्ट लैक्चर विच भी दस्सिया सी कि जिहड़े प्रोड्यूसर्स हुंदे ने वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखते हैं, पर जो वो इनपुट लगाते हैं उस गुड नू प्रोड्यूस करन दे लई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ मिनिमम कॉस्ट करते हैं, मतलब खर्चा जो हुंदा है उन्हां दा उस गुड नू प्रोड्यूस करन दे लई ਉਹ बहुत ज़्यादा घट हुंदा है और उसनू सेल आउट करते हैं एट मैक्सिमम रेट। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि प्रोड्यूसर्स ਨੂੰ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। क्लीयर। तो नैक्सट चीज़ ਅਸੀਂ देखते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजंस रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फॉर whom to produce are taken by some central authority appointed by the government of the country। तो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री मीनस कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कुछ सेंट्रल अथॉरिटी नू अथॉरिटी दे दिंदी है कि तुसी डिसाइड करके दसना है कि इकोनॉमी दे विच किस तरीके दियां गुड्स जो ने प्रोड्यूस होनियां चाहिदियां ने कंज्यूमर्स दे लई। ऑल डिसीजंस आर टेकन विद द व्यू टू मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਇਕੋਨਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲੀ ਪਲਾਨਡ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। तो इस करके ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਇਕੋਨਮੀ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। Unlike market economy, profit maximization is not the consideration. Those goods and services will be produced which the centrally authority finds most useful for the society। जो society ਦੇ ਲਈ ज़्यादा useful होएगा वही central authority अपना decision देगी कि producers ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ वाली production जो है करो। Clear। तो नेक्स्ट आ जाएगा साढ़े कोल मिक्सड इकोनमी। मिक्सड इकोनमी कंबाइंस द मैरिट्स एंड अवॉइड्स द डीमेरिट्स ऑफ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनमी। जो मिक्सड इकोनमी है वो कंबाइन कर देगी मैरिट्स नू, किस दे मैरिट्स नू, मार्केट ते सेंट्रली प्लान्ड इकोनमी दे मैरिट्स नू। मैरिट्स मतलब एडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस। तो मिक्सड इकोनमी दे विच असी मार्केट इकोनमी प्लस ਸੈਂਟਰਲੀ ਪਲਾਨਡ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲੀ ਪਲਾਨਡ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਰਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ decisions regarding what, how and for whom to produce are taken on the basis of market forces as well as on the basis of social considerations।
ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ what is economic problem, what are the central problems of economic problem and also give solution to it। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अगर थानू इसका फुल फ्लैज आंसर चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल में सबसक्राइब करो, लाइक करो तो कमेंट करके मैंने दसो, तो फिर मैं फुल फ्लैज वीडियो उस चीज़ पर बनाऊँगी तो मैं थानू सारे आंसर्स जो है वो थानू मैं राइट डाउन करवा दूँगी। ठीक है, नाउ हुण असी करना PPC। ये जस्ट असी समझण दे लई करना आ, बट इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट व्हाट इज़ PPC, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिहड़ा आ वो इहदे नाल ही रिलेटेड है। क्लीयर? नाउ PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लीयर? इस दे होर भी नेम ने जिमें कि प्रोडक्शन बाउंड्री, और प्रोडक्शन फ्रंटियर, एंड जो कर्व हुंदी है उसनों असीं कहंदे हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। सो हुण आपां कोई भी सबजैक्ट अगर स्टडी करते हैं, हुण असीं इकनॉमिक्स नूं स्टडी कर रहे हैं, सानूं उहदी हर चीज़ के बारे पता होना ज़रूरी है। ठीक है, हुण अनफॉर्चुनेटली तुहाडा सिलेबस जो है CBSE ने कट कर दिता, बट इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही हुंदा है सानूं पढ़न दे लई, कोई भी चीज़ फालतू नहीं हुंदी हैगी। पर हुण कोरोना वायरस आ गया, उसके करके बहुत सारिया प्रॉब्लम्स जो ने क्रिएट हो गई ने अपनी इकोनमी दे विच। तो पर असी टॉपिक्स जो है उन्होंने एक बारी रीड आउट जरूर करांगे ताकि सानू नैक्सट क्लास दे विच कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लीयर? तो PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नेम तो ही थोड़ा जिहा क्लीयर हो रहा है कि असी इस दे विच प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी नू चैक करते हैं कि किस तरीके दे नाल प्रोड्यूसर्स जो ने प्रोडक्शन करते हैं अपने गुड्स की। तो ये असी एग्जाम्पल लेंदे आ, 2 गुड्स नू लवांगे असी, वन इज़ व्हीट एंड सैकेंड वन इज़ क्लॉथ। व्हीट क्लॉथ, तो यह हो गई साडियां 2 गुड्स। ठीक है जी, हुण असी इत्थे लवांगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कि साडी प्रोडक्शन करन दी पॉसिबिलिटीज़ की ने। नाउ असी कुछ कॉम्बिनेशनस ले लांगे, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दे विच असी डिफरेंट कॉम्बिनेशनस लैंदे हुंदे आ और उस दे विचों बेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो चूज़ करता हुंदा आ प्रोडक्शन दे लई। तो थानू टेबल एंड ग्राफ दे नाल ज़्यादा अच्छे तरीके नाल समझ आ जाएगा। मैं डायरैक्टली उही थानू समझा रही हूँ। ABCDE, तो यह साडियां प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ने। ठीक है बेटा, नाउ हुण असीं इन्हां कुछ नंबर्स दे देने आ। व्हीट नूं असीं लैख दे विच लै रहे हैं, क्लॉथ नूं असीं लै रहे हैं 1000 बेल्स दे विच। तो यह जो है असी अमाउंट ले लिया अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर असी 100 लाख टन्स व्हीट प्रोड्यूस करते हैं तो असी लेंदे हैं क्लॉथ 0। क्लॉथ नूं असी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। ठीक है, बी दे विच असी 90 व्हीट लेंदे हैं, 1 असी क्लॉथ लेंदे हैं। 70 असी व्हीट लेंदे हैं सी दे विच, फिर 2 ले लेंदे हैं क्लॉथ। 40 3 0 4। ठीक है,
ਹੁਣ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਾਓ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ। one is resources are given, जो resources ने सानू given ने। clear। second assumption की है साडी कि given resources जो ने साडे are fully and efficiently utilized, कि जो साडे गिवन रिसोर्सिस ने वो फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज किए हुए ने। एंड लास्ट जो है साडी असम्पशन कि टैक्नोलॉजी जो है साडी वो कॉन्स्टेंट है। ये टैक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्लीयर। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਹੈ ਜੋ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਜੋ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। तो अगर असी 100 ਲੈਨੇ ਆ ਵੀਟ, 100 प्रोड्यूस करते हैं वीट, तो 0 है साडा क्लोथ। 91 72 4304 तो ये साडे कोल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ने, मीन साडे कोल बहुत सारिया चॉइसिस ने प्रोड्यूस करन दे लई। ठीक है। तो हुण असी इहनूं बाय ग्राफ किद्दां रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ नूं मैं नाउ लेट्स सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इहदी किस तरीके नाल होएगी। सो असी ग्राफ बना लांगे y x 0। ठीक है। हुण साडे कोल 100 तुसी टेबल दे विच देखो 100 मैं कॉम्बिनेशनस लिखी दिंदी हां तुहानूं इत्थे 100 0 91 72 40 304 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ कॉम्बिनेशन ਸੀਗੇ। ठीक है। तो इस दे अकॉर्डिंगली हुण असी ग्राफ नूं बनाना है। तो हुण असी लवांगे इत्थे 1 2 3 4। ठीक है। यह साडी है वीट, यह साडी है क्लोथ। तो असी इधर ले लवांगे क्लोथ, इधर ले लवांगे वीट। ठीक है जी। हुण असी ए वाले कॉम्बिनेशनस जो ने इत्थे ले ले, हुण असी ए वाले भी लवांगे। ए वाले लैन दे लई कुछ असी थोड़े वध लिख लवांगे, जिवें कि 10 तो स्टार्ट कर लवांगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। नाउ फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखो 100 एंड 0। तो बेटा 100 वीट है, 100 वीट होगी, असी इस तरह कर लिया। ठीक है। एंड 0 साडा जो था क्लोथ। ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन देखो 90 एंड 1 दा है। 90 इत्थे आ जाएगा, 1 इत्थे आ जाएगा। क्लीयर। तो असी इत्थे डॉट लगा लेंदे हैं। फिर थर्ड ऑप्शन आ गया 72। 70 कित्थे है, इत्थे आ रहा, 2 इधर आ रहा, तो असी ये ले लिया। ठीक है। हुण देखो असी नीचे नूं आ रहे हैं। ठीक है। फ्रॉम लैफ्ट वर्ड टू राइट वर्ड इदा। ठीक है। फिर आ गया साडा 40 एंड 3। 40 इत्थे, 3 इत्थे। लास्ट है 0 एंड 4। 0 इधर आ गया, 4 इत्थे आ गया। तो हुण असी इहनूं ज्वाइन करांगे इदा। ज्वाइन कर दिता तो एक ही आ गया साडा PPC
curve. Clear? तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ different combinations ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ join ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਸੀ ਸਾਡਾ 72, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੀ 40 and 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ join ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟਵਰਡ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100 ਅਸੀਂ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 0 ਅਸੀਂ ਕਲੋਥ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ तो क्लॉथ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀਟ ਦਾ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਜੋ ਹੈ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ और ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲੌਥ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो यही चीज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दे विच हुंदी है कि जो अगर असी वन अमाउंट ऑफ गुड जो है सैक्रीफाइस करते हैं फॉर दी अनदर गुड दे लई, तो उसनों असी कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये डाउनवर्ड स्लोप हुंदी है, इहदे विच टू कॉम्बीनेशनस नूं टू गुड्स नूं लैके चलिया जांदा है और असी एक अपनी परफेक्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पॉइंट नूं चूज़ कर लेंदे हैं कि असी इस प्रोडक्शन पॉइंट ते ही प्रोडक्शन करनी है। क्लियर? तो अगर कोई प्रोड्यूसर एफ पॉइंट ते असी इन्हां नूं नेम दे दिंदे हैं A B C D E। इफ एनी प्रोड्यूसर वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस एट द पॉइंट F, तो की होएगा कि ये अनअटेनेबल पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि साडे यह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दे विच नहीं इन्वॉल्व हैगा। क्लियर? अगर असी इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दे उपर लाइन दे उपर ही कोई भी पॉइंट नूं चूज़ कर लेंदे हां तो वो साडा बन जाएगा अटेनेबल पॉइंट। क्लियर? तो यही थोड़ी बुक दे विच नैक्सट 2 पॉइंट्स दिते हुए ने पीपीसी टॉपिक तो बाद कि अटेनेबल और अनअटेनेबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व केड़ी हुंदी है। ठीक है, तुसी देख सकते हो अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। तो ये विच यही चीज़ समझाई हुई है कि जो तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दे उपर है वो अटेनेबल पॉइंट है और जो बाहर आ जाता है वो अनअटेनेबल पॉइंट है। क्लियर? तो यही थोड़ा पीपीसी कर्व का टॉपिक है। नैक्सट कुछ छोटे छोटे ग्राफ्स ने जो कि मैं थोड़ा दस दिंदी हाँ कि अगर किसी रिसोर्सिस दे विच चेंजिज आते हैं या टैक्नोलॉजी दे विच चेंजिज आते हैं तो जो पीपीसी कर्व है वो किस तरह शिफ्ट होएगी। क्लियर? ए वाली तो जो असी ले आया ये असी टैक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट लई है और रिसोर्सिस जो ने असी फुली यूटिलाइज्ड लए ने। क्लियर? तो नैक्सट हुण देखो अगर शिफ्ट इन रिसोर्सिस हुंदा है, शिफ्ट इन रिसोर्सिस इस दे विच असीं 2 पॉइंट्स नूं कंसिडर करते हैं। वन इज़ कि जदों साडे रिसोर्सिस जो ने वो इनक्रीज़ हो जान एंड सैकेंड जो है जो साडे रिसोर्सिस ने जो डिक्रीज़ हो जान। क्लियर? तो हुण देखते हैं कि ग्राफ जो है वो किस तरीके नाल बनेगा। 0x y 0x y। नाउ साडे कोल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए वाली है। अगर साडे रिसोर्सिस जो ने इनक्रीज़ हो जाते हैं तो दैन साडी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी सारी दी सारी राइटवर्ड A1 B1। क्लियर? असी इधर गुड X ਲਈ है, इधर गुड Y लिया। ठीक है जी, समझ आ गया थानू कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इफ रिसोर्सेज आर इन डिक्रीजिंग पोजीशन तो की होएगा
कि साड़ी अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए वाली है तो वो शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड। क्लियर जी? की होएगा कि ए हो जाएगी राइटवर्ड, ए हो जाएगी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ਇਹ ਦੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਪੀਪੀਸੀ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਦੈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਐਕਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁੱਡ ਐਕਸ, ਗੁੱਡ ਐਕਸ, ਗੁੱਡ ਵਾਈ, ਗੁੱਡ ਵਾਈ, ਵਾਈ ਐਕਸ 0, ਵਾਈ ਐਕਸ 0। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਐਕਸ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ठीक है जी, ए बी। तो एक्स दी टेक्नोलॉजी नू चेंज कर दिता, ठीक है। ए चेंज दा साइन हुंदा है, डेल्टा जो हुंदा है चेंज दा साइन हुंदा है। तो की होएगा कि साडी सिर्फ एक्स गुड दी पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड। अगर असी गुड वाई नू देखिए कि अगर गुड वाई दी टैक्नोलॉजी नू असी इनक्रीज कर दिंदे आ, चेंज कर दिंदे आ, वाई दी टैक्नोलॉजी नू असी चेंज कर दिंदे आ तो की होएगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरह बन जाएगी, इन्हें इधर शिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो ए कुछ ग्राफ्स ने जो कि थोड़े मोटे अंडरस्टैंड करने के लिए सफिशिएंट ने। क्लीयर? तो हुण असी करांगे। तो गाइज ये हो गई सैकेंड बेस्ट ऑप्शन। तो हुण जदों असी देखना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट साडी की है तो उहदे विच देखना है कि जो साडी सैकेंड बेस्ट ऑप्शन होएगी वो साडी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होएगी। हुण तुसी कहोगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किवें होई है। हुण देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दा मीनिंग है नैक्सट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो नैक्सट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दा मीनिंग की है कि सानू नैक्सट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मीन सानू नैक्सट बेस्ट ऑप्शन केड़ी मिल रही है। तो केड़ी मिल रही है 7000। तो साडी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी है 5000 पर मंथ। तो इसका ग्राफ कुछ इदा बनेगा। सिंपल पीपीसी दे नाल असी डोनेट करांगे तो ए बी ए साडी की होगी है पीपीसी कर्व। तो हुण असी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब देख लिया कंसैप्ट के की हुंदा है। हुण असी देखांगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की है। नाउ हुण मैं एक ग्राफ बनाया, इहदे विच देखो कि यह साडी पीपीसी कर्व है, ए बी पीपीसी कर्व है। असी के पॉइंट ते प्रोड्यूस कर रहे सी पहला, उस इधर असी एल पॉइंट ते कर रहे सी, और फिर असी अगर इसका रिड्यूस कर दिता प्रोडक्शन तो इधर साडा गेन हो गया। तो इट मीनस के अगर असी एक चीज़ नू सैक्रीफाइस कर रहे हैं, सैकेंड चीज़ नू गेन कर रहे हैं, तो की हुंदा है कि वो साडी हुंदी है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि असी एक चीज़ नू सैक्रीफाइस कर रहे हैं एंड सैकेंड वन नू असी गेन कर रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फॉर्मूला दा की होएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी जो असी लॉस कर रहे हैं एंड बी सी जो असी गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनू इदा तुसी एलैबोरेट करके लिख देना है। डेल्टा मीन्स चेंज। तो एम ओ सी इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। के वन एल वन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। तो दिस इज योर marginal opportunity cost. Clear? So with this we have completed our second chapter. So हुण अगर तुहानू कोई डाउट्स ने, कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी का कोई आंसर चाहिए है तो प्लीज़ मैनू कमेंट करके ज़रूर दस्सिओ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। तो प्लीज़ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसनू लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल नू सब्सक्राइब करना। तो ठीक है जी, अपना ध्यान रखियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।